أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارا اسلام. صحیح بخاری کتاب بدء الوحی حدیث نمبر 7. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابو سفیان بن حرب کو حرق الشاہ روم نے قریش کے ایک قافلے سمیت طلب کیا. اس وقت یہ لوگ شام میں تجارت کی غرض سے گئے ہوئے تھے. یہ وہ زمانہ تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان اور قریش سے ایک وقتی معاہدہ کیا ہوا تھا. غرض یہ لوگ اس کے پاس پہنچے جب ہرقل اور اس کے ساتھی ایلیا میں تھے. ہرقل نے ان کو اہل علم اور امراء و عذرا کی ایک مجلس میں طلب کر لیا اور مترجم کے ذریعے بات شروع ہوئی. اور کہنے لگا اے عرب کے لوگوں، تم میں سے کون اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی رشتہ دار ہے؟ ابو سفیان نے کہا میں اس شخص کا قریبی رشتہ دار ہوں. تب ہرقل نے کہا اچھا، اس کو میرے پاس لاؤ اور اس کے ساتھیوں کو بھی قریب کر کے اس کے پیچھے بٹھا دو. اور مترجم سے کہا ان لوگوں سے کہو میں اس ابو سفیان سے اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چند سوالات کرتا ہوں. اگر یہ مجھ سے جھوٹ بولے تو تم کہہ دینا جھوٹا ہے. ابو سفیان نے کہا قسم اللہ کی، اگر مجھ کو یہ شرم نہ ہوتی کہ یہ لوگ مجھے جھوٹا کہیں گے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹ کہہ دیتا. خیر، پہلی بات جو اس نے مجھ سے پوچھی وہ یہ تھی کہ اس شخص کا تم میں خاندان کیسا ہے. میں نے کہا کہ وہ ہم میں عالی نسب ہے. کہنے لگا کیا اس سے پہلے بھی اس کے خاندان میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ میں نے کہا نہیں. کہنے لگا اچھا، اس کے بزرگوں میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ میں نے کہا نہیں. کہنے لگا اچھا، کیا امیر لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں یا غریب لوگ؟ میں نے کہا غریب لوگ. کہنے لگا اس کے تابعدار لوگ روز بروز بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ میں نے کہا بڑھ رہے ہیں. کہنے لگا اچھا، کیا اس کے دین سے کوئی مرتد بھی ہوتا ہے یا نہیں؟ میں نے کہا نہیں. کہنے لگا کیا اعلان نبوت سے پہلے کبھی تم نے اس کو جھوٹ بولتے دیکھا؟ میں نے کہا نہیں. کہنے لگا اچھا، وہ عہد شکنی کرتا ہے؟ میں نے کہا نہیں. اب ہمارے درمیان کچھ مدت کے لیے صلح ہوئی ہے، معلوم نہیں اس میں وہ کیا کرتا ہے. ابو سفیان نے کہا اس کے علاوہ میں کوئی اور بات نہیں کہہ سکا. کہنے لگا اچھا، تم اس سے کبھی لڑے؟ میں نے کہا ہاں. کہنے لگا پھر تمہاری اس کی لڑائی کیسی ہوتی ہے؟ میں نے کہا ہمارے درمیان لڑائی ڈول کی طرح ہے، کبھی وہ جیت جاتے ہیں اور کبھی ہم. کہنے لگا اچھا، وہ تمہیں کس بات کا حکم دیتا ہے؟ میں نے کہا وہ یہ کہتا ہے کہ اکیلے اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ اور اپنے باپ دادا کی شرک کی باتیں چھوڑ دو اور ہم کو نماز پڑھنے، سچ بولنے، پاک دامنی اختیار کرنے اور صلح رحمی کا حکم دیتا ہے. تب ہرقل نے مترجم سے کہا اس شخص سے کہو میں نے تجھ سے اس شخص کا خاندان پوچھا، تو نے کہا وہ ہم میں عالی نسب ہے اور رسول ہمیشہ اپنی قوم میں عالی نسب ہی بھیجے جاتے ہیں. اور میں نے تجھ سے پوچھا کیا اس کے خاندان میں پہلے بھی کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ نہیں. اس سے میرا مطلب یہ تھا کہ اگر اس سے پہلے کسی نے یہ دعویٰ کیا ہوتا تو میں سمجھتا کہ یہ بھی ان کی پیروی کر رہا ہے. اور میں نے تجھ سے پوچھا اس کے بزرگوں میں کوئی بادشاہ گزرا ہے تو میں سمجھ لوں کہ یہ وہ شخص پیغمبری کا بہانہ کر کے اپنے باپ دادا کی بادشاہت لینا چاہتا ہے. اور میں نے تجھ سے یہ پوچھا کہ
उस बात के कहने से पहले तुमने कभी उसको झूठ बोलते देखा? तूने कहा नहीं। तो अब मैंने समझ लिया कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि लोगों पर तो झूठ बांधने से परहेज करे और अल्लाह पर झूठ बांधे। और मैंने तुझसे पूछा, क्या अमीर लोगों ने उसकी पैरवी की या गरीबों ने? तूने कहा गरीबों ने, और रसूल के ताबेदार अक्सर गरीब ही होते हैं। और मैंने तुझसे पूछा, वो बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं? तूने कहा बढ़ रहे हैं, और ईमान का यही हाल रहता है, जब तक वो पूरा नहीं होता बढ़ता ही रहता है। और मैंने तुझसे पूछा, कोई उसके दीन में आकर फिर उसको बुरा समझकर उससे फिर जाता है? तूने कहा नहीं, और ईमान का ही हाल रहता हाल है, जब उसकी खुशी दिल में समा जाती है तो फिर नहीं निकलती। और मैंने तुझसे पूछा, वो हर शिकनी करता है? तूने कहा नहीं, और रसूल ऐसे ही होते हैं, ओ अहद नहीं तोड़ते हैं। और मैंने तुझसे पूछा, ओ तुमको क्या हुक्म देता है? तूने कहा, ओ अल्लाह की इबादत करने और उसके साथ किसी को शरीक न बनाने का हुक्म देता है, और बुत परस्ती से तुमको मना करता, और नमाज और सच्चाई का और हरामकारी से बचे रहने का हुक्म देता है। फिर जो तू कहता है अगर सच है तो वो अनकरीब उस जगह का मालिक बन जाएगा जहाँ मेरे ये दोनों पाँव हैं, यानी शाम के मुल्क का। और मैं जानता था कि ए रसूल आने वाला है, लेकिन मैंने नहीं समझा था कि वो तुम में से होगा। फिर अगर मुझे उस तक पहुंचने का यकीन हो जाए तो मैं उससे मिलने की ज़रूर कोशिश करूं, और अगर मैं उसके पास मदीना में होता तो उसके पाँव धोता, खिदमत करता। फिर उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त मंगवाया, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दहिया कल्बी रदियल्लाहु अन्हा को 6 हिजरी में देकर बसरा के हाकिम की तरफ भेजा था। उसने वो ख़त हरकुल को भेज दिया था, जिसमें ये लिखा था, शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और रहम करने वाला है। मोहम्मद अल्लाह के बंदे और उसके रसूल की तरफ से हरकुल रूम के नाम मालूम, जो सीधे रास्ते पर चले, उसको सलाम। और उसके बाद मैं तुझको इस्लाम के कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरफ बुलाता हूँ। मुसलमान हो जाओ तो बच जाओगे, अल्लाह आपको दोहरा सवाब देगा, वरना आपकी रियाया का भी गुनाह आप ही पर होगा। और ये आयत लिखी थी, ऐ अहले किताब, इस बात पर आ जाओ जो हम और तुम में यकसा हैं कि हम अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत नहीं करेंगे, उसके साथ किसी को शरीक नहीं बनाएंगे, और अल्लाह को छोड़कर हम में से कोई किसी को अल्लाह नहीं बनाएगा। फिर अगर वो इस बात को ना माने तो मुसलमानों, तुम उनसे कह दो, गवाह रहना, हम तो एक अल्लाह के ताबेदार हैं। अबू सुफियान ने कहा, जब हरकुल को जो कहना था वो कह चुका और खत पढ़ चुका तो उसके पास बहुत शोर मचा और आवाज़ें बुलंद हुईं और हमें बाहर निकाल दिया गया। मैंने अपने साथियों से कहा, अबू कबशा के बेटे का तो बड़ा दर्जा हो गया है, उससे तो रूमियों का बादशाह भी डरता है। उस रोज़ से मुझको पूरा यकीन हो गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर गालिब होंगे, यहाँ तक कि अल्लाह ने मुझको मुसलमान कर दिया।
ज़हरी ने कहा, इब्ने नातौर, जो एलिया का हाकिम और हरकुल का मसाहिब और शाम के नसारा का पादरी था, वो बयान करता है कि हरकुल जब एलिया बैतुल मुक़द्दस आया तो एक रोज़ सुबह परेशान परेशान उठा। साथियों से पूछा, आज आपकी कैफियत क्यों बदली हुई है? इब्ने नातौर ने कहा, हरकुल नजूमी था, उसको सितारों का इल्म था। जब लोगों ने उससे पूछा तो तू क्यों रंजीदा है, तो वो कहने लगे, मैंने आज रात सितारों पर नज़र डाली तो ऐसा मालूम होता था कि खतना करने वालों का बादशाह हम पर गालिब आ गया है, लिहाजा पता करो कौन लोग खतना करते हैं। साथियों ने कहा, यहूदियों के सिवा कोई खतना नहीं करता, तो आप उस वजह से परेशान ना हो। सल्तनत के तमाम शहरों में ये पैगाम भेज दें कि जहाँ जहाँ यहूदी हैं उन्हें कत्ल कर दिया जाए। वो लोग यही बातें कर रहे थे। इतने में हरकुल के सामने एक शख्स लाया गया जिसको गुसान के बादशाह हारिस बिन अबी समर ने भिजवाया था। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल बयान करता था। जब हरकुल ने उसकी सारी बातें सुन ली तो अपने लोगों से कहने लगा, ज़रा जाकर उस शख्स को देखो, उसका खतना हुआ है या नहीं। तो उन्होंने उसको देखा और हरकुल को बताया कि उसका खतना हुआ है। और हरकुल ने उससे पूछा, क्या अरब खतना करते हैं? उसने कहा, हाँ, खतना करते हैं। तब हरकुल ने कहा, यही शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस उम्मत के बादशाह हैं जो गालिब होंगे। फिर हरकुल ने अपने एक दोस्त ज़गातिर को रूमिया में लिखा। ओह, इल्म में हरकुल का साथी था और हरकुल खुद हम्स को गया। अभी हम्स से नहीं निकला था कि उसके दोस्त ज़गातिर का ख़त उसको मिला। उसकी भी राय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिर होने में हरकुल के मुवाफिक थी, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी हैं। आखिर हरकुल ने रूम के सरदार को अपने एक महल में तलब किया। जब वो आ गए तो दरवाज़ों को बंद करवा दिया। फिर ऊपर बाला खाने में आकर कहने लगा कि रूम के लोगों, क्या तुम अपनी कामयाबी और भलाई और अपनी बादशाहत पर कायम रहना चाहते हो? अगर ऐसा है तो उस अरब के नबी से बैयत कर लो। ये सुनते ही लोग जंगली गधों की तरह दरवाज़ों की तरफ लपके, लेकिन दरवाजे बंद थे। जब हरकुल ने देखा कि उनको ईमान से ऐसी नफ़रत है और उनके ईमान लाने से नाउम्मीद हो गया तो कहने लगा, उन सरदारों को फिर मेरे पास लाओ। जब वो आए तो कहने लगा, मैंने जो बात अभी तुमसे कही वो तुम्हें आजमाने के लिए की थी कि तुम अपने दीन में कितने मजबूत हो। अब मैं वो देख चुका। तब सबने उसको सजदा किया और उससे राज़ी हो गए। ये हरकुल का आखिरी हाल हुआ। इमाम बुखारी ने कहा, इस हदीस को सालेह बिन कीसान और मामर ने भी शुएब की तरह ज़हरी से रवायत किया। फ़क़त वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, हमारी इस वीडियो को देखने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन बटन को दबा दें
تاکہ ہر نئی ویڈیو آنے والی سب سے پہلے آپ دیکھیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ سبسکرائب ٹو مائی چینل ایف این ٹیک ان اردو ہندی۔